Arjun Armored Repair and Recovery Vehicle, Bridge Laying Tank, Bi-Modular Charge System for 155 ammunition, Medium Bulletproof Vehicle, Weapon Locating Radar, Integrated Air Command and Control System, Software-Defined Radios, Lakshya Parachute for pilotless target aircraft, Optoelectronic Sights for battle tanks, Water Jet Fast Attack Craft, Inshore Patrol Vessel, Offshore Patrol Vessel, Fast Interceptor Boat, Landing Craft Utility. 25 T-tugs have been produced in the country during the last few years. Further, for the first time, a made-in-India advanced towed artillery gun developed by our industry was part of the 21-gun salute during the Independence Day celebration at Red Fort in New Delhi. Vikrant is huge, Vikrant is massive, Vikrant is vast, it is special, it is distinguished. Was part of the 21-gun salute during the Independence Day celebration at Red Fort in New Delhi. For the company and personally for people like me, it's been a very critical milestone. It's been a visible milestone, I should put it that way. Strength of India really coming in. India getting accepted because people are today, I don't want to use which country, but then India is being seen as a clear alternative to that particular country to do large-scale manufacturing. An innovation ecosystem for defense titled Innovations for Defense Excellence, or IDEX, was launched in April 2018 to foster innovation and technology development in defense and aerospace by engaging industries including MSMEs, startups, individual innovators, R&D institutes and academia. IDEX provides them grants and funding and other support to carry out innovations and R&D, which have the potential for future adaptation for Indian defense and aerospace needs. Under IDEX, 223 problems have been opened, 310 startups have been engaged, 140 contracts have been signed. IDEX Prime Framework under IDEX has been launched in 2022 to support startups with grant and aid up to 10 crore to enable the development of high-end solutions. Till October 2022, a total of 595 industrial licenses have been issued to 366 companies operating in the defense sector. Biggest roadblock which I felt was qualifying any tender and contract. So generally it is always L1 based and previous qualification which kicks in the defense sector. Now being a startup, before the policies kicked in that EMD, security deposits, you don't need to push that across in. These were the biggest roads. So it was very difficult for us to participate in any of the RFPs or the tender-based contracts coming in. As the policy started coming in, it really eased the way out. Because once somebody allows you to run the race, then it's up to you to win it. So I think it was just the opportunity to run the race and the time is right now. We are running the race and we are winning it. As part of this vision, the Department of Defense Production has also developed an indigenous portal, Srijan Portal, which is one-stop shop online portal that provides access to the vendors to take up items that can be taken up for indigenization. On this portal, Defense Public Sector Undertakings, Ordnance Factories Board and Station Headquarters can display their items which they have been importing, which the Indian industry can design, develop and manufacture as per their capability or through joint venture. The comprehensive user-friendly dashboard on Srijan Portal
has been developed to monitor the status of progress on the indigenization process. Government has also established 2 defence industrial corridors, one each in Uttar Pradesh and Tamil Nadu, to attract investments in aerospace and defence sector and established a comprehensive defence manufacturing ecosystem in the country. Moreover, the respective state governments have also published their aerospace and defence policies to attract private players as well as foreign companies, including original equipment manufacturers, in the 2 corridors. To enhance defence manufacturing, Defence Research and Development Organisation, that is DRDO, regularly transfers its newly developed technologies to industries without any charges. Furthermore, industries have been granted free access to DRDO patents. DRDO actively engages with industries through niche technology demonstrations, which not only enables industries to receive valuable user inputs for product improvement, but also allows them to conduct self-testing and evaluation of their products under realistic field conditions. Additionally, the test facilities of MOD establishments have also been opened up to industries, providing them with opportunities for testing their products. These initiatives foster collaboration between DRDO and industries, facilitating advancements in defense technology and product development. In the emerging scenario in the defense sector, both in light of the new disruptive technologies that have emerged, the change in the global geopolitics, as well as the government's policies of Atmanirbharta and Make in India. As India strengthens its domestic defense manufacturing capabilities, it is emerging as a sought-after supplier of defense equipment worldwide. Defense exports have witnessed a remarkable 8-fold increase since 2016-17, from 1,522 crore to 13,800 crore. The central government has set a target of reaching total defense exports of 35,000 crore by 2024-25. We are working with the Government of India for exporting our products to various friendly countries. There are 2 types of export where we are engaged in. One export is to supplying the products to friendly countries where our country has got a strategic interest, and second, to collaborate with the big multinationals where they are required to manufacture their subsystems or product in India to meet their offset obligations. So we are working on both the aspects. We have tied up with Thales France, where we are supplying trans-receive modules to them for their global applications where they have commitment for offset business in India. We are also working with Photonis for establishing that manufacturing facility for image intensifier tubes, 4G technology. Similarly, II also we are working for exporting the product as part of offset obligation. Today, India engages in military domain with several nations across the world at both the government and industry levels via joint military exercises, joint working groups, technology collaborations, joint ventures, and information sharing, among other activities. In addition to the existing level of cooperation, the evolving geopolitical situation, including the growing challenges in the Indo-Pacific region and competition in new frontiers of the defense domain, such as space, are creating new avenues for cooperation. World is exploring opportunities for technological cooperation in domains like artificial intelligence, space, underwater technologies, unmanned technologies, and cybersecurity with India. India's growing importance in the global defense sector is a testament to its ability to transform and compete on the global stage. Well, viewers, that's all I could pack for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV with camera persons Yogesh and Sudhanshu and camera assistant Kaushal and Kriti Mishra signing off for Sunset Television.
In India, 51% of the villages and 94% of the farmers are associated with the cooperative movement in one way or the other. In order to realize Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of prosperity through cooperation, it is necessary that the flow of credit in cooperative sector should remain continuous. सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया। Under the guidance of the Honorable Home and Cooperation Minister, the Ministry is working in close coordination with all the stakeholders in the cooperative sector. अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। In order to increase the flow of credit by cooperative financial institutions in Amrit Kaal of independence and to bring prosperity through cooperation, it is necessary that the participation of cooperative sector in the total credit flow should increase from around 13% at present to 40% by the year 2047. The cooperative sector has a three-tier structure of rural cooperative banks for flow of credit, with 34 state cooperative banks operating at the apex level through 2,089 branches, 351 district central cooperative banks DCCBs operating at the district level through 13,670 branches and about 1 lakh primary agricultural credit societies, that is BACS, working at the grassroots level. The rural credit delivery system rely heavily on rural cooperative banks because of their wide network and business capability. It is noteworthy that with more than 14.5 crore accounts in the country, majority of the farmer members are connected with rural cooperative banks. Government of India has taken several steps to strengthen rural cooperative banks, such as rural cooperative banks are now included as member lending institutions, MLIs, under Credit Guarantee Fund scheme of CGTMSE. Due to this, rural cooperative banks will be able to avail the benefit of risk coverage up to 85% on the sanctioned loan. Along with this, the cooperative sector enterprises can also avail collateral-free loans from cooperative banks. Through onboarding of rural cooperative banks on the modern Aadhaar-enabled payment system, AEPS, digital revolution is being brought in the cooperative sector. To facilitate small cooperative banks, the license fee has been reduced by linking it to the number of transactions. Apart from this, cooperative financial institutions will also be able to get the facility free of cost for the first 3 months of the pre-production phase. With this, farmers will now be able to get doorstep banking facility at their fingerprints. The boards of rural cooperative banks are now authorized to make one-time settlement and write off their loans. This will set them free from the pressure of dual regulation and make them financially autonomous at par with other commercial banks. Rural cooperative banks can now diversify their business by lending to commercial real estate, residential housing sector, which will not only benefit the rural cooperative banks, but also housing cooperative societies. The limit of individual housing loan of rural cooperative banks has been increased to 2.5 times. Now rural cooperative banks will be able to give loans up to Rs 75 lakhs to the farmer members for personal housing, advancing the members towards prosperity. All these steps taken by the Government of India will strengthen the rural cooperative banks across the country in Amrit Kaal of independence and make the vision of prosperity through cooperation a reality. For more information, contact www.cooperation.gov.in.
Namaskar. Welcome to Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. The Indian government initiated the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan to transform the country's infrastructure. We at Sunset TV have begun a series under Gati Shakti to highlight PM Modi's vision and his government's execution in the sphere of infrastructure. In this episode, which we have named Soaring Greater Heights, we will look at the Indian civil aviation sector. What have been its achievements and how has the sector transformed over the last 9 years? The Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan is a central government project aimed to revolutionize infrastructure in India. Prime Minister Narendra Modi announced the launch of the Gati Shakti Yojana, a rupees 100 lakh crore project for developing holistic infrastructure in India on the 75th Independence Day. गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोडों को जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। Once slumbering through slow and incremental growth, Prime Minister Modi has awakened India to transformative growth. And for the realization of the dream, India's infrastructure needs to be brought to world standards. The Pradhan Mantri Gati Shakti scheme envisages multimodal connectivity, economic zones, industrial zones, agriculture zones, cargo zones, and smart cities, which will boost production, transport, demand and employment in the country. Civil aviation, therefore, is an important cog in the wheel. India's first licensed pilot, J.R.D. Tata, kicked off the Indian aviation sector in 1932 with the introduction of the first airline, Tata Air Services. The airline flew its inaugural flight in October that year from Karachi to the then Bombay. In a short duration, Tata Air Services progressed from a small freight airline to a commercial passenger airline. By 1938, the carrier was renamed Tata Airlines and was flying on a number of routes on the domestic circuit. Following India's independence in 1947, Tata Airways was renamed as Air India, and the government took a 49% stake in the airline. Air India flew its first international flight in 1948 between Bombay and London. By the 1950s, India was home to a number of small airlines. In 1953, the Indian government nationalized the aviation industry, taking control of all major airlines. This resulted in the 8 major airlines being merged into 2 airlines run by the government. These 2 airlines were Air India and Indian Airlines. Indian Airlines operated domestic flights in India, and Air India focused on international routes. Air India and Indian Airlines started to struggle in the 1970s. In the 1990s, India reversed the stance on regulation and allowed private airlines once again. By 1994, India repealed all laws regulating the formation of airlines and allowed the introduction of scheduled private airlines. Civil aviation has been one of the most important sectors where the growth is clearly evident.
be it the increase in the number of people flying or the number of airports in the country. India has witnessed a big leap and has a huge potential to fulfill that lies ahead. Prime Minister Narendra Modi recognizes the significance of civil aviation in taking India from the 10th to the 3rd largest economy of the world. Government's vision for the civil aviation is to ensure the people to have access to safe, secure, sustainable and affordable air connectivity services with world-class civil aviation infrastructure. Under Prime Minister Modi, there have been 4 ministers of civil aviation: Ashok Gajapati Raju, Suresh Prabhu, Hardeep Singh Puri and Jyotiraditya Scindia. They all have worked on a mission. The mission of the Indian Civil Aviation Ministry is to create world-class civil aviation infrastructure facilities, to establish effective regulatory framework, including for safety, in harmony with international standards, to connect presently unserved areas of the country, to develop skilled human resource according to the needs of the sector, to deploy advanced technologies for the optimal growth of the sector, to ensure maximum satisfaction of users, optimize consumer satisfaction. The government has set in motion a plan to transform Indian airports into aviation hubs, beginning with the Delhi airport to ensure seamless connectivity and minimize connection time between flights. In 2018, the Modi government set a goal to have 855 million air travelers by 2030-31. At the same time, it said that it would double the civil aviation infrastructure in the country by 2025 by building 220 airports. Back in 2014, around 67 million domestic passengers had taken to the skies. By 2022, that figure had nearly doubled to 123.2 million domestic passengers, despite being hit by the COVID-19 pandemic in 2020 and part of 2021. The number of airports in India has gone up from 74 in 2014 to 148 now, with the government aiming to increase this number to 220 by 2024-25. DG Yatra, which proclaims your face is your boarding pass, is another important technological leap for seamless processing of passengers. Launched towards the end of 2022, DG Yatra faced few issues related to privacy, but the Civil Aviation Minister allays such fears. You will download an app on your phone called Digi app and Digi Locker. Based on that, you will then raise and put in place your Aadhaar details onto that app. You will then take a recent photograph of yours, which will be then matched with your Aadhaar details. And that's it. 24 hours before you travel, you will upload that information on a blockchain system with the airport, only the airport that you're traveling with. When you reach the airport, the airport server will have your information residing in it immediately. When your photograph is taken, that photograph at that entry point will then be matched with this information, and the doors will immediately open and you'll pass seamlessly through till you board. Once you have boarded and once you have completed your journey, within a period of 24 hours, all the information that you have uploaded only onto that airport will be completely purged. The Modi government also launched India's first regional connectivity scheme, Ude Desh Ka Aam Nagrik, or UDAN, in 2016, with the aim to make air travel affordable and augment economic development. बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा ने ये राजा महाराजाओं का ही विषय है और इसलिए हमारी एयरलाइंस के साथ जो लोगो जुड़ा था वो भी महाराजा का जुड़ा था
एविएशन को मैं किस रूप में देखता हूं? हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे। Since the launch of the scheme, more than 114 million passengers have travelled in more than 216,000 Udan flights, with the government providing rupees 2,300 crore as a part of the viability gap funding. As of November 2022, 453 routes were operational, with 70 airports including 2 water landing sites for seaplanes and 9 heliports. The Udan scheme was created to target India's unserved, underserved and mostly underdeveloped regional airports with regularly scheduled flights. After nearly 7 years and more so due to the intervening COVID pandemic, the Udan scheme needs a reassessment. Air traffic on Udan routes decreased by more than 20% in December 2022, primarily due to the COVID pandemic. The next phase of Udan will focus on improving last-mile connectivity in remote areas, promoting the operations of small aircrafts. Two lakh 54,817 metric tons of perishables were transported pan-India in FY 2021-22. Perishables tonnage pan-India, including joint venture airports, till November 2022 was 1,64,925 metric tons. 5 more airports were added to Krishi Udan 2.0, taking the total airports to 58. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation of India's first transport aircraft manufacturing facility on 30th October 2022 in Vadodara, Gujarat, for production of C-295 aircraft in India. 40 aircrafts will be manufactured in India by Tata Consortium led by Tata Advanced Systems Limited and delivered from September 2026 to August 2031. While this is a step in the right direction, India has a long way to go if it wishes to be a hub of passenger aircraft manufacturing. Make in India, make for the globe. इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। The government had set its sight on completing the sale of Air India as part of its larger plan to divest stakes in public sector undertakings. In January 2022, it completed the divestment of Air India to the Tata Group. The airline, which was nationalized in 1953, returned to the fold of the Tata Group, which had started the one-time flag carrier. Air India had accrued a loss of roughly rupees 1,57,339 crore in 10 years. The Tata Group bid rupees 18,000 crore as the airline's enterprise value. India is one of the fastest growing aviation markets in the world. Boeing has projected the country will require over 2,200 new planes in the next 2 decades and also pegged annual domestic air traffic growth to nearly 7% through 2041. In February this year, Air India firmed up its order for 250 Airbus and 220 new Boeing jets worth $70 billion at list prices. In June, Indigo placed a firm order of 500 Airbus A320 family aircrafts.
This is the largest ever single aircraft purchase by any airline with Airbus. With this new order, since its inception in 2006, Indigo has ordered a massive total of 1,330 aircrafts with Airbus. The aviation industry in India is also looking towards consolidation. I think it's a very positive sign, and the very fact that you will have a aggregated carrier, if you will, that looks at the merger on the one hand between Air India and Vistara, and on the other hand between Air Asia and Air India Express. And you will have a single airline that will offer a bouquet to our customer, both on the FCC side, which is the full cost carrier, which will be Air India plus Vistara, and on the ULCC side, the ultra low cost carrier, which will be the combination of Air Asia and Air India Express. And I think that the value proposition will only be enhanced through this combination of an offering. The government had also said that it will come out with a policy to boost drone manufacturing in India and make the country a global manufacturing hub for UAVs or unmanned aerial vehicles. 2 years ago, it passed the new Drone Rules 2021, which the industry saw as a major step in promoting the use of drones across various segments. With the introduction of the new rules, the industry said the domestic market had the potential to grow to rupees 50,000 crore or $6.8 billion in the next 5 years. ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। Despite doubling in terms of the market size in the last 9 years, attracting the biggest aircraft original equipment manufacturers or OEMs to set up shop in India or create an infrastructure for commercial aircraft leasing has remained a challenge. The lack of manufacturing facilities in India poses a massive problem for airlines in the country, which till date suffer due to unavailability of spare parts and engine manufacturing in the country. Government has to redouble its efforts in this direction. In fact, Gophers had blamed engine manufacturer Pratt & Whitney's inability to supply spare parts and engines for its Airbus aircraft for grounding its fleet in May. The two companies are currently in a legal fight. Around 70 planes of Gophers, Indigo and SpiceJet were grounded across multiple airports in the country due to the unavailability of spare parts and lack of MRO infrastructure in India. The Modi government has also said that it is keen to provide an enabling ecosystem for the growth of the aircraft maintenance, repair and operations industry in the country. Ground handling services, maintenance, repair and overhaul यानी एमआरओ में भी 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए एमआरओ का हब बन सकता है। आज सभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज भारत में मौजूद है। मैं उन्हें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। India still has a long way to go to reach its intended target of 220 airports by 2025. Many existing brownfield airports, including India's busiest ones, are going through a phase of renovation and expansion to modernize and factor in projected growth in traffic. A number of new greenfield airports are being built across the length and breadth of the country. India is also building its largest airport in Noida.
The government is focusing on building infrastructure with the support of the private sector to make it more feasible with collaboration. Nearly $11.8 billion over a 4-year period would be spent by the Ministry of Civil Aviation on the construction of new greenfield airports and the development of existing brownfield airports. Out of this, the private sector will contribute $7.5 billion, while the Indian government will invest $4.3 billion through Airports Authority of India. From Delhi to Chennai, Mumbai to Kolkata, Indian airports are being upgraded or are being built from the scratch at a mammoth level. Delhi's Indira Gandhi International Airport is currently the busiest airport in India and the 9th busiest in the world. Its expansion has increased its capacity. 65 million passengers passed through IGI Airport's 3 terminals in 2022. The expansion work is largely complete. What the whole of India and indeed a big part of Asia and the world is interested in is the progress of the Noida International Airport at Jewar. Easily the biggest airport project currently in progress in India, the Noida International Airport first broke ground in 2021 and is expected to be fully completed in 2040. It is being developed by Yamuna International Airport Private Limited, a subsidiary of Zurich Airport International AG. Also known as Jewar International Airport, the huge project will include an initial 2 runways to cover 12 million passengers a year by 2024, before slowly expanding over the next 2 decades to become a 6-runway airport capable of handling 60 to 120 million passengers a year, making it India's and Asia's largest airport and the 4th largest in the world. It is hoped that the airport will improve the connectivity between Noida, Western Uttar Pradesh, Delhi and the National Capital Region by easing the high traffic load on the Indira Gandhi International Airport in Delhi. Noida International also has plans to become the country's first net zero airport. A distinct mark of progress in the sphere of civil aviation is the number of female pilots in the country. India has the highest number of female pilots in the world. Women comprise 12.4% of the pilots in India's major airlines. No other country has ever crossed the mark of 10%. India has more than 1,200 female pilots. देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। India is already the 3rd largest domestic aviation market in the world and is expected to overtake the UK to become the 3rd largest air passenger market by 2024. Indian aviation also contributed 5% of the GDP, creating a total of 4 million jobs. Let us here also not forget how the over 7 million other tourism sector jobs are closely linked to the health of the civil aviation sector. By one estimate, there is $72 billion gross value-added contribution to GDP by the aviation industry. There are multiple advantages of the aviation sector that needs to be highlighted. The aviation sector offers global connection, which is crucial for advancing international trade and business. Further, it greatly influences how a nation's economy is shaped by linking it to other nations and continents. It also plays a crucial role in promoting tourism by offering a robust transportation network. The promotion of tourism industry also helps the economy and employment sector both domestically and globally. The aviation sector has played an important role in natural catastrophes or even at the time of conflicts. No Indian will ever forget the courage displayed by Indian airlines and pilots in bringing students and other countrymen home
from war-torn and pandemic-hit countries in the last few years. आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि यूक्रेन से करीब करीब 23,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हो, हथियार और धमाकों से घिरी हुई परिस्थिति हो, तब इतना बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इनमें विदेश विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना से लेकर निजी एयरलाइंस, ग्राउंड पर एम्बेसी के अधिकारी से लेकर आप जैसे सभी वॉलेंटियर्स, सभी ने सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली अपना योगदान दिया। India's airport capacity is expected to handle 1 billion trips annually by 2023. In 2013-14, there were 400 aircrafts in the nation, and currently there are well over 700 aircrafts with more than 100 planes expected to join each year. The Ministry of Civil Aviation stated that it is likely to employ 1 lakh more people by 2024, which shows an increase in direct employment from 2.5 lakhs to 3.5 lakhs. Current trends predict a more than 250% growth in India's aviation sector over the next 20 years. With better connectivity, the Tier 2, Tier 3 cities and towns are to provide the real push. Growth in India's middle class and the rise in GDP per capita will be crucial to these projections. The industry, though, still seems to be in its take-off phase. To realize its full potential, challenges would need to be dealt with and obstacles overcome. That is all we have in our program. Keep watching Sunset TV. Goodbye. दुनिया के इतिहास में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां कपड़े को आज़ादी के संघर्ष में एक अस्त्र बनाकर इस्तेमाल किया गया था, जिसका मार्गदर्शन किया था महात्मा गांधी ने। उन्होंने कहा था, चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है, और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। हथकरघा बुनियादी तौर पर पावरलूम से अलग है। हथकरघा को चलाने के लिए बिजली, पानी, हवा या सूरज जैसी ऊर्जा के किसी भी स्रोत की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर कोई कमाल है तो वो है कुशल मानव हाथों का।
बुनकर परिवार, हैंडलूम से जुड़े लोग, उनका पूरा हिसाब किताब ताने बाने के साथ जुड़ा हुआ है। सारा खेल ताना और बाना से बना हुआ है। अब समय की मांग है कि हम एक नए सिरे से इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारे पास जो परंपरागत कला है, उस ताने को आधुनिकता के बाने के साथ कैसे जोड़ें। समय की मांग है कि गरीबी का ताना और अमीरी का बाना दोनों को जोड़ करके हम आर्थिक समृद्धि की दिशा में हैंडलूम को आगे बढ़ाएं। ये धागा संस्कृति का है। ये धागा विरासत का है। ये धागा है हमारी परंपराओं का। ये धागा है हमारे जज्बात का। ये धागा है देश का। हम भारत के लोग, हमारे लिए हमारे कपड़े सिर्फ हमारा पहनावा नहीं, इस पहनावे के साथ हम पहनते हैं हमारे जज्बात भी, हमारा प्रेम और हमारी निष्ठा भी, जो रची बसी है हमारी परंपराओं में, हमारी विरासत में और हमारी संस्कृति में। जरा सोचिए, जो प्यार, जो गर्माहट और जो एहसास माँ के हाथों से बुने हुए स्वेटर को पहनने से मिलता है, वो मशीन से बने हुए कपड़ों से मिलता है क्या? कैसे मिलेगा? जो प्यार, जो अपनापन, जो दुलार धागों के जरिए हाथों से बुने कपड़ों में होता है, वो बात किसी और में कहा। तभी तो हथकरघा से बने कपड़े इतने अलग होते हैं। संरचना और काम करने की तकनीक के आधार पर हथकरघा को 4 भागों में बांटा जाता है। आदिम करघा, इसमें वो सभी करघे शामिल हैं जिनमें ताने के सिरों को जोड़ने के लिए बाने को हाथ से पिरोया जाता है। ऊनी कंबल करघे, दरी करघे, नेवार करघे और टेप करघे इसमें शामिल हैं। पिट करघा, इसमें आते हैं थ्रो शटल पिट लूम और फ्लाई शटल पिट लूम। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में थ्रो शटल पिट लूम सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लूम था। फ्लाई शटल पिट लूम थ्रो शटल की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक कपड़ा बना सकता है। फ्रेम करघा, फ्रेम करघा केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम में बेडशीट, भारी सामान, तौलिए, धारीदार ड्रेस, बिस्तर कवर जैसे डिजाइन किए गए कपड़ों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। अर्ध स्वचालित करघे 2 प्रकार के होते हैं, स्लो मोशन और ट्रेडल। स्लो मोशन वो तकनीक है जिसमें हाथ से अलग से की जाने वाली पिकिंग को छोड़कर सभी प्राथमिक और अन्य गतिविधियां स्लो गति से प्रभावित होती हैं। मैं कभी कभी जब खादी या हैंडलूम पर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हम दुनिया की कितनी वैरायटी क्यों न पहन ले, लेकिन जब हैंडलूम या खादी की चीज लगती है तो ऐसा ही लगता है जैसे माँ ने परोसा है, प्यार से परोसा है, प्यार से बनाया है। ये जो फर्क है, ये फर्क जब हम महसूस करेंगे
तब हमें पता चलेगा कि ये कितने प्यार से बनाई हुई चीज मेरे शरीर पर मैंने धारण की है। हमारे देश की हथकरघा कला हजारों साल पुरानी है। सदियों से देश के बुनकर हथकरघा को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और इस कला को निखार रहे हैं। लेकिन जब देश पर विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उसकी मार हथकरघा कारीगरी पर भी पड़ी। तब देश के बुनकर एकजुट हुए और 7 अगस्त 1905 को देश ने स्वदेशी अपनाने का नारा बुलंद किया। आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या कहता है। कपास के पौधों से कपड़ों को बनाने का एक अपना ही संसार है। तुर्कों के आगमन के बाद कपड़ों के निर्माण में एक नया अध्याय जुड़ा, चरखा। भेद बता दे ये काटने वाली नार। सदियों से भारत में चरखे के लोकगीत आम जनमानस की जुबान पर रहे हैं। अरे मैं सुनियो रे ये कचूबो। गांधी जी ने चरखा को अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने का जरिया बनाया था। लेकिन 16वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर देश के बुनकरों की इस आत्मनिर्भरता पर प्रहार किया और भारत को धीरे धीरे कच्चे कपास के निर्यातक देश में बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध तक आयातित मशीनों से बने कपड़ों की भारतीय बाजार में बाढ़ सी आ गई। लेकिन अपने खून की होली खेलकर भी हमारे बुनकरों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को कायम रखा। आज जब हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं तो देश के स्वदेशी आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हथकरघा दिवस को मनाने की जड़ें इसी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हैं। साल 1905 भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। लॉर्ड कर्जन के इस फैसले का पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। लाखों लोग इसमें शामिल हुए और स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। भारतीयों ने विदेशी सामानों और वस्त्रों की होली जलाई। देश में स्वदेशी की ऐसी अलख जगी कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ये मील का पत्थर साबित हुई और भारतीयों ने खादी फॉर द नेशन का मंत्र दिया। भारत के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर आज की बदलती हुई परिस्थितियों में खादी फॉर नेशन के साथ खादी फॉर फैशन का नारा भी जुड़ गया है। मेक इन इंडिया को दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आह्वान देशवासियों से किया। The Swadeshi movement was launched on 7th August 1905. It is remembered as one of the major events of our freedom struggle. It was on this day that Indians started to boycott imported textiles. Therefore, this day has a special significance for handlooms. Hence, we have chosen this day to be celebrated as National Handlooms Day. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद एक सपना देखा। आत्मनिर्भर भारत का, जो आकार ले रहा है, जो साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल और फिर ग्लोबल की हनक
आज दुनिया में सुनाई दे रही है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत हमारी कला की आज दुनिया दीवानी है। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 75 साल आज़ादी को मिले तो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखना है और आने वाले 25 साल में ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें हम हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जा सके। हथकरघा सेक्टर देश की समृद्धि को दिखाता है, जिसका केंद्र हमारे देश की संसद और जनप्रतिनिधि भी हैं, क्योंकि जनता तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है ये वो बेहतर जानते हैं। हैंडलूम को बढ़ावा दीजिए, हैंडलूम इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए, हैंडलूम ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, जो घर में जो डेकोरेशन होता है हैंडलूम का इस्तेमाल करिए। इससे हमारे बहुत सारे मैं कहती हूँ टैलेंटेड वर्कर्स जो हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और देश की भी जो आन बान शान है, संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की जो सोच है कि हमारा ग्राउंडेड वाला व्यक्ति वो ऊपर उठकर हमारी जो संस्कृति है वो कहीं पर भी साइड नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा आगे रखने का काम अगर कोई कर सकता है तो आप सभी लोग। हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अनुमान है कि भारत में 4 मिलियन से अधिक लोगों को हथकरघा क्षेत्र से रोजगार मिलता है। मतलब देश में कपड़ा उत्पादन में लगभग 15% का योगदान हथकरघा का है। विश्व में हाथ से बुने हुए 95% कपड़े भारत के ही होते हैं। जो किसी के हाथों से बनी हुई जो चीज़ है उसका मशीन की बनी हुई चीज़ों से मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हाथों से बनी चीज़ है उसमें उस इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं। मशीन तो मशीन है। हथकरघा जनगणना 2019-20 के मुताबिक देश भर में 35 लाख से ज्यादा हथकरघा श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा श्रमिक तो केवल महिलाएं हैं। मतलब कुल हथकरघा श्रमिकों में से महिलाओं की भागीदारी 72% से भी अधिक है, जो अपने आप में महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है। हैंडलूम से बहुत सारी महिला जुड़ी है, खास करके जो देश की आधी आबादी के हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। हैंडलूम के ऊपर जो लोग काम करते हैं, इसमें जितनी भी महिला है, भाई है, बहुत सारे लोग हैं। पूरी हमारी आपने जो बात करी वो हमारी विरासत ही है। और विरासत में पिछले साल से जो हमने एक नई शुरुआत करी, माई साड़ी माई प्राइड, तो हैंडलूम की वीविंग के साथ में साड़ी को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को संजो के हमें आगे बढ़ना है। हाल के दिनों में भारत में हथकरघा श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं, जैसे सरकारी पहल, सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाना, हथकरघा को फैशन के साथ जोड़ना, हथकरघा का पुनरुद्धार, निर्यात के अवसर और प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में देश के बुनकरों के लिए 5F का तोहफा था, जिसे उन्होंने पूरा किया। हथकरघा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इस योजना का मकसद है घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी लाना, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो, निर्यात बढ़े और इकोनॉमी बेहतर हो। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना के तहत एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का अवसर मिलेगा। मतलब सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी, जिससे उद्योग की लॉजिस्टिक लागत कम होगी। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना। वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उसमें संबंधित व्यापार को आसान बनाने, रोजगार पैदा करने
और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के रूप में 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की शुरुआत की। एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य रेशम उत्पादन उद्योग के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी को हटाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हैंडलूम जो है इतना बड़ा सेक्टर है, वस्त्र का भी और उनमें खासतौर से कपड़े का भी, कि जो रोजगार देता है। और इसलिए हैंडलूम डे के ऊपर खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात का आग्रह भी करते हैं कि हम लोग भी जाएं, खरीदें, कुछ न कुछ हैंडलूम का वस्त्र खरीदें और सब लोग को भी प्रेरित करें, ताकि हमारे जो हैंडलूम निर्माता, जो बुनकर हैं, उनका एक आर्थिक आधार बने। हथकरघा का मतलब होता है कारीगर, उनकी मेहनत। आज हैंडलूम की वजह से ही लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ हैंडलूम ने अपना तरीका भी बदला है, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि उन्हें आधुनिक से आधुनिक कपड़े मिले। उसी को देखते हुए अब हैंडलूम के कपड़े भी आपको लोगों की पसंद के मिल रहे हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत के जिस भी कोने में आप जाएंगे, हथकरघा कला से सजे रंग बिरंगे और चमकदार वस्त्र आपको सजाएंगे। जम्मू कश्मीर की पश्मीना और हिमाचल की कुल्लू शॉल से लेकर पंजाब की फुलकारी और लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की साड़ी हो या मध्य प्रदेश की माहेश्वरी साड़ी, बिहार की भागलपुरी सिल्क से लेकर पश्चिम बंगाल की जामधानी, छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क और मध्य प्रदेश की चंदेरी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी से लेकर तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क, सब मिलकर भरते हैं भारत के नक्शे में अलग अलग रंग और सुगंध। देश का हर कोना किस्म किस्म की बुनाई और इस पर तैयार किए गए पहनावे का सुनाता है एक अनोखा किस्सा। पूरी दुनिया उसको मान्यता दे रही है। हम लोग जहाँ भी इस तरह की साड़ी वगैरह पहन के जाते हैं, हैंडलूम की साड़ियों को, तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। भारत अलग अलग रंगों से सजी हुई संस्कृति है और संस्कृति के ये रंग हथकरघा के वस्त्रों में देखे जा सकते हैं। देश का हर कपड़ा कुछ कहता है। हो कोई जलसा या कोई त्योहार, पूरे कहाँ होते हैं जब तक पहने ना जाएं हथकरघा से बने परिधान। तो इस त्योहार हथकरघा के वस्त्रों को जरूर अपनाइए। हर गोरखपुर सहरिया में बनला सरंगिया, है राम बनला सरंगिया, अरे साड़िया बनला बनरसिया। भारतीय हथकरघा पूरी दुनिया में हमारी महान संस्कृति को दिखाता है। ऐसे तो हर एक राज्य का अपना एक अलग ही रंग है, लेकिन अद्भुत खजाने को समेट रखा है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर ने, जिसे जाना ही जाता है बनारसी साड़ियों के लिए। ऐसी एक साड़ी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके हर एक बूटे को कारीगरों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस साड़ी को बनने में 15 दिन से ज़्यादा का समय लगा और 5 से अधिक कारीगरों ने तैयार किया है। साड़ी को देखने के बाद तो यही लगता है कि सोचिए हमारी संस्कृति कितनी महान है कि अपने ही देश नहीं, इस साड़ी की चर्चा तो दुनिया भर में है। असम संस्कृत शब्द असोमा से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम और अद्वितीय। असम न केवल एक उभरता हुआ राज्य है, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाला स्थान भी है। ये राज्य न केवल अपनी शांति और हरे भरे जंगलों के लिए, बल्कि लोगों के पारंपरिक पहनावे से भी अपनी सुंदरता को दर्शाता है। परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और यहाँ के लोग उस विरासत को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। आइए यहाँ कपड़ों के उन खूबसूरत और उत्तम टुकड़ों पर एक नजर डालें जो केवल असम में ही मिल सकते हैं।
ये है असम के पहचान गामूसा। असम में अहोमिया ही खाली नहीं रहते, हम लोग के भाई बहुत लोग रहते हैं, बोडो, राभा, कौसारी, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। तो हम लोग का यदि ये तो गामूसा है तो किसी किसी के लिए ये भी एक गामूसा ही है। इसके अलावा हम लोग के इधर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादातर महिलाएं इस तरह की चद्दर यूज़ करते हैं जो प्योर सूता का है। ये बहुत ही सुंदर है। असम के मुगा बहुत प्यारा है हम लोगों का। मुगा के साथ हमेशा हम लोग रेड प्रेफर करते हैं। बिहू के टाइम असमीज जो डांसर है बिहू डांस करते हैं, वो लोग इसको पहन के बिहू डांस करते हैं। ये हम लोगों का ट्रेडिशन है। असम में हथकरघा बुनाई असमिया संस्कृति और विरासत से अटूट रूप से जुड़ी है। असम का हथकरघा क्षेत्र पुराने पारंपरिक कुटीर उद्योग बुनकरों को महत्वपूर्ण रोजगार दे रहा है। ये बुनाई का काम मैं 25 सालों से कर रहा हूँ। अभी पाट और मुगा सबको अच्छा लगता है, बहुत डिमांड है और यही काम से, यही बुनाई से जो मेरा उपार्जन है, मैं मेरा रोजगार से घर चलाता हूँ। इधर से मेरा काम करने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है, मेरे परिवार को मैं अच्छी तरह से चला सकता हूँ। असम की पारंपरिक रेशम बुनाई में इलाकाई और प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल की जाती थीं। धागा बनाने और कपड़ा बुनने में काफी मेहनत लगती थी, लेकिन जब अपने काम से मोहब्बत होती है तो संकरी पीठ वाले पट्टे पर कपड़ा बुनना वाकई आसान हो जाता है। पहले मैं हुआलकुसी में काम करता था, उसमें भी मैं बहुत साल काम किया। उसके बाद दीदी के ये वीविंग सेंटर में काम किया। बहन है, बच्चा है, उन सभी को मैं मेरा ये तनख्वाह से, मेरा इन पैसों से ही घर चलता है, परिवार चलता है। समय बदला है पर कला नहीं बदली। सरकार के सक्रिय सहयोग, विकास और प्रचार से इन बुनकरों और व्यवसायियों को काफी मदद मिली है। पिछले 4-5 सालों से हैंडलूम की तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ असम में, क्योंकि अभी औरतें बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम करने के लिए निकल पड़ी है और कुछ सरकारी जो स्कीम्स है उसके बदौलत भी ये संभव हो चुका है। सब मिलाकर हम बोल सकते हैं हैंडलूम की तरक्की बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। गोल्डन थ्रेड मूगा सिल्क और बहुमुखी एरी सिल्क की दुनिया भर में मांग होना इस क्षेत्र का एक फायदा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए हथकरघा कपड़ों के उत्पादन में निवेश का फायदा भी असम को मिल रहा है। The economy in Northeast is mostly based on rural economy, and most of the hill states are dominated by the rural industries like handloom and handicraft, and handlooms of Nagaland, Manipur, Arunachal, every state that way, every 7-8 states has its own kind of handloom products, which is very popular all over India, and it has received international recognition. हाथ करघा और हाथ से बने हुए वस्त्र या हाथ से बनी हुई चीज़ें, उनका भाव अलग होता है, उनकी शोभा अलग होती है, क्योंकि उसमें जिसने बनाया है उसके अपने भाव मिले होते हैं, वो मशीन में नहीं होते हैं। और दूसरा कि भारतवर्ष सदियों पुराना हमारा ये जो देश है, इसकी परंपराएं यही रही हैं कि जिसको आप हैंडलूम कहते हैं, वो हैंडलूम सबसे श्रेष्ठ है। अब जो मैंने आज पहना है परिधान, वो असम की मेखला है, वो हाथ से बुनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अद्भुत जो चित्रण हैं, इस पे डिज़ाइंस हैं, वो सारी असम की टिपिकल हैं।
हथकरघा बुनाई भारत की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाई है, जो देश की समृद्ध कलात्मक और शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में हथकरघा क्षेत्र का भविष्य आशाजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। कई बाधाओं के बावजूद विकास के अवसर मौजूद हैं। हैंडलूम्स, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्टिसंस और वीवर्स को लेके जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, खूब सुंदर है, उच्च कोटि की है। और मैं मानता हूं भारतवर्ष आज उस कगार पे है कि विश्व के सामने हमारे हैंडलूम्स के द्वारा हम एक नई कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। फैशन को लेकर बढ़ती जागरूकता हैंडलूम क्षेत्र को भी एक नया अवसर देती है। वोकल फॉर लोकल और उसके बाद ग्लोबल, इसी के मंत्र के साथ भारत सरकार हैंडलूम क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, जिसमें वित्तीय सहायता, कौशल विकास और बाजार को प्रोत्साहन जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। तकनीक की बात करें तो हथकरघा बुनाई में आधुनिकता का समागम उत्पादन क्षमताओं में सुधार ला रहा है, जिससे हथकरघा कपड़े भी बाजार में मुकाबला कर पा रहे हैं। मौजूदा वक्त में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हथकरघा से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार मुहैया करा रहा है, जिससे बुनकर जो हैं वो आसानी से ग्राहकों से जुड़ पा रहे हैं। अगर चुनौतियों की हम बात करते हैं तो हैंडलूम को सबसे कड़ी टक्कर पावरलूम से मिल रही है। कम समय में कम लागत में कपड़े तैयार भी हो जाते हैं और बाजार में भी आ रहे हैं, जिसका घाटा बुनकरों को हो रहा है। दूसरे नंबर पर आता है तकनीक का अभाव। अभी भी कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में, गांवों में जो बुनकर्स हैं वो पुरानी परंपराओं के आधार पर ही कपड़ा तैयार कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी मेहनत तो उतनी ही लग रही है, लेकिन जितनी लागत, जितनी मेहनत लग रही है, उतना फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है वित्तीय बाधा, क्योंकि वित्तीय बाधाओं की बदौलत हमारे बहुत सारे ऐसे बुनकर भाई हैं जिन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। वो चाहते हैं अपने काम को आगे बढ़ाना, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार गंभीरता से बुनकर समाज की मदद के लिए आगे आ रही है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इन चुनौतियों से बुनकर समाज उबर आएगा। कभी सोचा है विराट हिमगिरी से अनंत हिंद महासागर तक, अतरंगी गुजरात से सुरम्य गंगा सागर तक, मोहन जोदाड़ो और वेदों की विधाओं का साक्षी कौन पिरोता है वो एक सूत्र जिसमें बसे हैं हमारे विभिन्न स्वरूप। कालजयी है हमारे बुनकरों की विरासत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सांस्कृतिक विरासत की ये धागे अलग अलग रंग और रूपों में पूरी दुनिया को कर रहे हैं सम्मोहित। भारतामध्ये 51% गावं आणि 94% शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या रूपात सहकारिता आंदोलनाशी जोडले गेले आहेत। देशाचे यशस्वी पंतप्रधानांच्या दिशानिर्देशांनी मंत्रालय सहकारिता क्षेत्राच्या सगळ्या हितधारकांबरोबर सतत संपर्कात आहे आणि कार्य करत आहे। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। स्वातंत्र्याच्या अमृत काळामध्ये सहकारी वित्त संस्थांद्वारे क्रेडिट प्रवाहाला वाढवणे तसेच सहकारातून समृद्धी आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे की एकूण क्रेडिट प्रवाहामध्ये सहकारिता क्षेत्राची भागीदारी वर्तमानाच्या जवळजवळ 13% वाढून
वर्ष 2047 पर्यंत 40% होऊ शकेल. सहकारितेच्या क्षेत्रात वित्त प्रवाहामध्ये ग्रामीण सहकारी बँकांची 3 पातळीची संरचना आहे, ज्या 34 राज्य सहकारी बँक 2089 शाखांच्या माध्यमाने शीर्ष पातळीवर, 351 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक DCCB, 13,670 शाखांच्या माध्यमाने जिल्हा पातळी, तसेच जवळजवळ 1 लाख प्राथमिक कृषी ऋण समित्या म्हणजे की पॅक्स जमिनी पातळीवर कार्य करत आहे. ग्रामीण सहकारी बँकांच्या व्यापक नेटवर्क आणि व्यवसाय क्षमतेची ग्रामीण ऋण वाटप प्रणाली यांच्यावर निर्भर करत आहे. उल्लेखनीय आहे की देशामध्ये 14.5 कोटींपेक्षा जास्त खात्यांबरोबर जास्तीत जास्त शेतकरी सदस्य याच्याशी जोडलेले आहेत. या ग्रामीण सहकारी बँकांना सुदृढ करण्यासाठी भारत सरकारने कित्येक पावले उचलली आहेत. CGTME च्या क्रेडिट गॅरंटी निधी योजनेमध्ये आता ग्रामीण सहकारी बँकांना सदस्य ऋण देणाऱ्या संस्था MLI च्या रूपात सामील करून घेण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे आता ग्रामीण सहकारी बँक दिल्या गेलेल्या ऋणावर 85% जोखीम किंवा रिस्क कव्हरेजचा लाभ घेऊ शकतील. त्याबरोबरच सहकारी क्षेत्राच्या उद्यमींना पण आता सहकारी बँकांकडून कोलेटरल मुक्त ऋण मिळू शकेल. ग्रामीण सहकारी बँकांना आता आधुनिक आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली AEPS वर ऑन बोर्डिंगच्या माध्यमाने सहकारितेच्या क्षेत्रामध्ये डिजिटल क्रांती आणली जात आहे. या क्षेत्रात छोट्या सहकारी बँकांच्या सोयीसाठी लायसन्स शुल्काला व्यवहारांच्या संख्येशी जोडून कमी केले गेले आहे. त्याशिवाय सहकारी वित्त संस्थांना पहिल्या 3 महिन्याच्या प्री प्रोडक्शन टप्प्यांपर्यंत मोफत सुविधा पण मिळू शकेल. यामुळे आता घर बसल्या बँकिंगची सुविधा शेतकऱ्यांना त्यांच्या फिंगरप्रिंटवर मिळू शकेल. ग्रामीण सहकारी बँकेचे बोर्ड पण आपल्या ऋणांचा एक रकमी निपटारा तसेच राईट ऑफ साठी अधिकृत आहे, ज्यामुळे आता त्यांना दुहेरी नियंत्रणाच्या दबावापासून सुटका मिळू शकेल. तसेच इतर व्यापारी बँकांप्रमाणे या पण आता आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होऊ शकतील. ग्रामीण सहकारी बँका आपल्या व्यापाराचे विविधीकरण करत व्यावसायिक रिअल इस्टेट, निवासी गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्ज देऊ शकतील, ज्याचा फायदा केवळ ग्रामीण सहकारी बँकांनाच नाही तर उलट आवासीय सहकारी समित्यांना पण लाभ होईल. ग्रामीण सहकारी बँकांची व्यक्तिगत आवास कर्ज मर्यादा 2.5 पटीने वाढवली गेली आहे. आता व्यक्तिगत आवासासाठी शेतकरी सदस्याला ग्रामीण सहकारी बँक 75 लाख रुपयापर्यंत कर्ज देऊ शकतील, ज्यामुळे सदस्य पण समृद्धीकडे अग्रेसर होतील. भारत सरकारच्या या पावलांमुळे ग्रामीण सहकारी बँका स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात अधिक प्रभावी होतील आणि सहकारातून समृद्धीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणतील. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा www.cooperation.gov.in. नमस्कार, अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के लिए आज होंगे रवाना। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी और भारतीय वैज्ञानिकों को सराहा। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन में कहा, दुनिया में प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा पर। प्रतिनिधिमंडल में रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। पूरी दुनिया करना चाहती है मुक्त व्यापार समझौता। भारत की युवा आबादी से देश को हो रहा फायदा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के 3 मंत्री निलंबित।
भारतीय हस्तियों ने अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों को दिया कड़ा जवाब। सोशल मीडिया पर किया भारतीय पर्यटन स्थलों का समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। 5 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर गई। सभी को चौंका देने वाला ये जादुई आंकड़ा इस यात्रा के शुरू होने के केवल 50 दिनों के भीतर ही प्राप्त कर लिया गया है। ये आंकड़ा विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण के प्रति देश भर के लोगों को एकजुट करने में इस यात्रा के व्यापक प्रभाव और बेजोड़ क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में इस बार का विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का प्रवेश द्वार। सम्मेलन में 34 सहयोगी देश और 16 सहयोगी संगठन भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रौद्योगिकी और प्रासंगिक वैश्विक विषयों पर सेमिनार आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वो विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मंगलवार को ही प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बुधवार को 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की सफलता और भारतीय नौसेना द्वारा उत्तरी अरब सागर में हाईजैक जहाज से 21 चालक दल के सदस्यों को तेजी से बचाने पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत इस दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौसेना ने असीम साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही अरब सागर में वाणिज्यिक पोत के संकट में होने की सूचना मिली, नौसेना और समुद्री कमांडो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोत में सवार 15 भारतीयों सहित सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। दो दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आदित्य L1 की सफलता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 ने निर्धारित समय में सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है।
रविवार शाम को पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों, आतंकवाद, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। लद्दाख के कारगिल में एयरफोर्स ने सुपर हरक्यूलिस विमान की नाइट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। अब रात के अंधेरे में भी निगरानी और दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। एयरफोर्स ने रविवार को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सेना के कमांडोज भी दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने यूके के समकक्ष रक्षा सचिव ग्रांट शाप्स के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। लंदन में वो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक का भी दौरा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा, जिसमें DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव डेविड कैमरून के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है। वो यूके के रक्षा उद्योग के CEO और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 22 वर्षों में ये भारत के रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की पहली यात्रा होगी। भारत के साथ पूरी दुनिया मुक्त व्यापार समझौता करना चाहती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंधों का विस्तार करना चाहती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और कपड़ा मंत्री ने कहा कि भारत की युवा आबादी से उसे फायदा हुआ है, जो दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है। देश में महिलाओं के औपचारिक कार्यबल में शामिल होने की वकालत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब महिलाएं काम पर जाएंगी तो इससे देश की GDP में 2 गुना इजाफा होगा, क्योंकि जो काम वे अभी कर रही हैं उसकी जगह तकनीक ले लेगी। आज कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक होने जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जहाज MV गंगा क्वीन पर होने वाली इस 1 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 के साथ साथ हरित नौका दिशा निर्देश भी लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को चिन्हित करते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। बैठक में भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों से संबद्ध पैक एजेंडा भी शामिल होगा। Vessels. With 111 notified national waterways spanning more than 22,000 kilometers spread across 24 states, IWT provides an effective alternative mode of transportation with lower overall logistics cost and reduced greenhouse gas emissions. To accelerate holistic development of inland waterways and the associated IWT